So let us continue with isosceles triangle. Okay. You remember the theorem of isosceles triangle? Yes. If the two sides are equal, then the angles opposite to the sides will also be equal. Okay. So based on the same theorem, let us do the next question. Question number 8. Question number 8. Draw the diagram once in your notebook. (42) and this angle is x. Okay, so first label the diagram like this: A, B, C, and this point is D. And after labeling, start with this triangle. Solve this triangle first. ठीक है, अब ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. ठीक है, तो ये भी 42 मिल जाएगा. Okay, so right here like this: AC equals AD. Therefore, angle ACD equals angle ADC. Reason आपको पता है क्या लिखना होता है? जो मैंने बताया लास्ट क्लास में, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा therefore angle ADC is also 42 degrees. फिर ये 42 मिल गया. अब इसके बाद ये फाइंड करो DAC. फाइंड DAC.
So angle ADC you got as 42, फिर 42 42 और ये क्या है DAC, ठीक है। तो this sum is 180. तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एंगल DAC प्लस 42 प्लस 42 इक्वल्स 180. तो आपको क्या मिला एंगल DAC 180 minus 84, that is 96 degrees. You will get this angle as 96 degrees. Okay. फिर ये 42 है यहाँ पे, तो लीनियर पैसे कैन फाइंड दिस एंगल, ठीक है। लीनियर पैसे कैन फाइंड दिस एंगल, so let us find that. So angle ADB, angle ADB मतलब ये वाला है, this angle ADB plus angle ADC means this angle plus angle ADC equals 180. Write the reason as linear. So ADB is 42 plus angle ADC equals 180. So angle ADC equals 180 minus 42. How much is this? 138. 138 degrees. So you will get this angle as 138 degrees. अब ये 138 आने के बाद, ये 138 आने के बाद ये side AD, this side AD and this side BD are equal. If these two sides are equal, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। अब इनको x मत लेना, ये x ऑलरेडी वेरिएबल है, so take it as y. So these two angles will be same. Take them as y. Okay, I will write the names of the angle. I will first write that AD equals BD. Therefore, angle DBA is equal to angle DAB. Reason is same. Angle opposite to equal sides. ठीक है। Then what will we do? ये दोनों y और ये 138. So total again is 180. So y plus 138 equals 180. So 2y equals 42. So y equals 21 degrees. Y equals 21 degrees. Next to erase करता हूँ and continue here. Now, अब ये y मिल गया, कितना मिला? 21. ठीक है। अब how will I find x? ये straight line है यहाँ पे, you can see this is a straight line here. Okay, अगर ये straight line है तो ये पूरा, ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा. Okay, ये पूरा, ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा. Means अगर मैं इन एंगल्स का नाम लूँ तो x plus BAD या DAB बोलते हैं इसे, एंगल DAB प्लस ये एंगल DAC equals 180. Reason linear pair. So x plus 21 plus 96. Solve this, you will get x. कितना मिल रहा है? 63. Solve and check, all of you.
ये एंगल, ये लीनियर पेयर बनते हैं। क्या कर सकते हैं? Done. Next. Yes, full is there. Question number 9. Draw the diagram. We have to find the values of x and y. What's the method means? See, first of all, let's read the question once. In a triangle ABC, BD bisects angle B. BD is a line in BD. This bisects angle B. Angle B को bisect करेगा मतलब ये angle और ये angle same है. There said the question only. There said that BD bisects angle B. Okay, मतलब ये दोनों angle same है. ठीक है? Then they are saying and is perpendicular to AC. मतलब ये जो BD है, it is perpendicular to AC. इसलिए 90-90 बन रहा है यहाँ पे. Okay, they are perpendicular to AC. If the length of the sides of the triangle are expressed in terms of x and y, as shown below, find the values of x and y. Now, we have to use the concepts of triangle here. हमें triangles को congruent prove करना होगा. Triangles को congruent prove करना पड़ेगा. और congruent prove करने के लिए tests होते हैं. कौन से टेस्ट होते हैं? SAS, SSS, ठीक है, या SAAB होता है. ठीक है, इसको ASAB, दो एंगल्स और एक साइड भी होता है. Two angles and one side. Okay, so you can write it like this also. ASAB बोल सकते हैं इसको. Two angles and one side. These are the three tests. You will study this in triangles chapter if you do it. ठीक है, मतलब बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? व्हाट डज कॉन्ग्रुएंसी मीन? कॉन्ग्रुएंसी मीन अगर मैंने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ओके, कोई भी एक टेस्ट यूज करके मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. वंस द ट्रायंगल्स आर प्रूव कॉन्ग्रुएंट, देन ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल. बाकी बचे हुए साइड्स भी इक्वल होते हैं. मतलब देखो, एक अगर दो ट्रायंगल्स में रखूं ऐसे, तो उन दोनों ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं? इसमें 3 और इसमें 3. ठीक है, ट्रायंगल्स में साइड कितने होते हैं? इस ट्रायंगल में 3 और इस ट्रायंगल में 3. ओके, अब उस 3 एंगल्स और 3 साइड्स में से, ठीक है, कोई भी 3 चीज सेम होनी चाहिए. जैसे एक साइड और 2 एंगल, या 2 साइड और 1 एंगल, या तीनों साइड, ठीक है, वो दूसरे से सेम होनी चाहिए. अगर वो 3 चीज सेम मिल गई तो बाकी बची हुई 3 चीज भी सेम ही होगी. दैट इज व्हाट कॉन्ग्रुएंसी इज. वहां पे हमें कॉन्ग्रुएंसी काम आता है. तो जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स में, क्या मुझे ये पता है AB और BC इक्वल है? ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में. ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं कि these two triangles are congruent, तो मैं लिख सकता हूं कि AB equals BC.
बिकॉज दोनों सेम ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड सेम है, हर एक साइड सेम होगी इनफैक्ट, फिर ये साइड और ये साइड भी सेम होगी। ओके, तो पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करें? तो क्या मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सेम है वो पता है? कोई भी एंगल सेम नहीं है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये ऊपर वाले दो एंगल सेम है ना, फिर आपने मार्क किया मैंने, तो आई विल राइट लाइक दिस, इन ट्राइंगल ADB and triangle CDB, in these two triangles, ठीक है, comma this angle and this angle is equal, तो triangle का नाम दो, angle ABB is equal to angle CBB, और रीजन से लिखो BD is a bisector। अच्छा, और क्या सेम है इन दोनों ट्रायंगल में, और कुछ एंगल सेम है इन दोनों ट्रायंगल से? 90, देखो ये इस ट्रायंगल में 90 है और इस ट्रायंगल में भी 90 है, तो दिस 90 एंड दिस 90 सेम, तो ये भी इक्वल है, इनका भी नाम लिखते हैं, एंगल ADB is equal to angle CBB is equal to 90 degrees। सेम मिल गया, टू एंगल्स आर सेम। अब कोई एक साइड सेम है क्या? ऑब्जर्व करो ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल्स जो है उनकी तो हर साइड को देखो, क्या ये दोनों साइड इक्वल है? दिया नहीं है। ये दोनों साइड इक्वल है? दिया नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड ये है, एक साइड ये है, थर्ड साइड कौन सी है? BD। तो ये जो साइड BD है, ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो मतलब ये इक्वली हुई साइड दोनों ट्रायंगल्स के लिए। ये जो साइड है BD, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, तो मतलब डेफिनेटली ये तो इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर दूं ऐसा, समझो मैं दोनों ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर दूं, तो उसमें ये साइड तो इक्वली होगी क्योंकि वो कॉमन साइड है दोनों की। ओके, तो मैं लिखूंगा BD इज अ कॉमन साइड, तो मुझे एक साइड सेम मिल गई, मींस टू एंगल्स एंड वन साइड। ओके, so I will write by ASAS triangle ADB is congruent to triangle CDB। Okay, copy this much, then we'll see what to do। Now once the triangles are equal, अगर दोनों triangles equal है तो मैं कह सकता हूँ this side and this side is equal, क्योंकि मैंने congruent prove कर लिया है, ठीक है। तो once I have proved them congruent, I will write that AB equals BC and ये जो साइड है ना ये AD और DC, this is also equal,
AD equals BC। ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड ये दोनों भी सेम होगी, और ये ट्रायंगल की साइड और ये ट्रायंगल की साइड सेम होगी। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो मैंने अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिए, ठीक है, और मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी साइड 5 है, ये साइड 4 है। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर इसकी साइड ये 5 है तो इसकी ये वाली साइड 5 है, अगर ये 4 है तो इसकी ये साइड 4 है, इक्वल होते हैं साइड्स, ओके। और ये थर्ड साइड पे अगर सबने 10 दिया होगा तो ये भी 10 होगा। वैसे if the triangles are congruent then the sides are equal, ओके। और इसका रीजन आपको लिखना होता है, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, CPCPC CPCPC corresponding parts of congruent triangles are congruent। Yeah, yes, angle side angle side angle side, ठीक है। अब अगर अगर मुझे बताओ अभी अगर AB और BC इक्वल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x + 1 इक्वल्स 5y - 2। हाँ सर, ठीक है। और अगर ये मैंने इक्वल लिखा है तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा 3x - 5y इक्वल्स -2 - 1, so 3x - 5y इक्वल्स -3। फिर this side and this side is also equal AD और DC, तो AD की वैल्यू क्या है x + 1 and DC क्या है y + 2, so x - y equals 2 - 1। This is equation 2। Once you have the two equations, these two equations, you will solve them simultaneously। x वेरिएबल को सेम बना दूं तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3x - 3y equals 3। Now how to solve this? Signs are same, so you will subtract, so यहाँ पे माइनस हो जाएगा, this will become plus and this will become minus, so 3x cancel, -5y + 3y is -2y, -3 is -6, minus cancel, 2y equals 6, so y equals, if y is 3 हमारे पास वो इक्वेशन है x - y equals 1, इसमें y की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, you will get x as 4। These are your final answers। Done?
Question number 10. In the given figure, AE is parallel to BD. ये लाइन जो है और ये जो लाइन है, these two lines are parallel to each other. Okay. Then you have one more line like this and one line like this. और फिर ऐसी एक और लाइन है, something like this. Okay, this is AC, which is parallel to ED. Okay, here the angle is given as 58 degrees. This angle is A, this angle is B, and here the angle is C. We have to find the values of small a, b, and c. अच्छा, हमने पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की. जस्ट टेक अ लुक एट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने किए थे. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? अगर ये दो लाइंस पैरेलल थे, ये ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. ठीक है, इसको अगर मैं टिल्ट कर दूं, समझो दो लाइंस ऐसे पैरेलल और ये लाइन ऐसे है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेक्ट, ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे वाला एंगल. ठीक है, लाइन थी, या इसको भी करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, दिस एंड दिस. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन दिस फिगर, एंड व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्रॉस बनता है, उसमें जो सामने के एंगल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, सो इसका मतलब if this is 58, this angle will also be 58. What will be the reason? Vertically opposite angles. तो यहाँ पे लिखते हैं पहले कि एंगल CBE is 58. Reason vertically opposite angle. ठीक है, अब ये 58 मिला है. ओके, नाउ टेल मी, ये जो एंगल है यहाँ पे और ये एंगल में कोई रिलेशन है? दे विल बिकम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल CDE is equal to angle C. Reason corresponding angles. ऑल्टरनेट Z होता है, Z ऐसा. मतलब ऑल्टरनेट, अगर इसका ऑल्टरनेट चाहिए तो ये होता है, देखो ये Z बनता है. ऑल्टरनेट का मतलब Z बनता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब ऊपर नीचे होता है. ये ऊपर नीचे वो करस्पॉन्डिंग होता है.
Hello, is my voice clear to everyone? Swayam, please check your connection. All others are able to listen to me properly. सबको मेरी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है, प्लीज चेक करो आप. ठीक है. So this is 58. This is also 58. तो मुझे C की वैल्यू मिल गई. मुझे मिल गया C is 58. एक आंसर मिल गया. I have got one answer. C as 58. Okay. क्यों B 58 होगा? नहीं. These two are co-interior. नहीं. But these two lines are not parallel. Co-interior parallel lines के बीच में होता है. ये दोनों parallel lines नहीं है. Co-interior नहीं होगा. सी मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगा आपको और क्या मिलेगा. देखो, ऑब्जर्व केयरफुली. What is the relation between this angle and this angle? ये दोनों भी corresponding है क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है. ओके, यहाँ पे देखो ये corresponding क्यों हुआ था? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थी. ओके, these two lines were parallel. That is why हमें corresponding मिला. जैसे ये दो लाइंस भी पैरेलल है तो this will be corresponding. Okay, so I will write here that angle CDE is equal to angle ACB. Corresponding angles. Write properly. Write the reason also. ये corresponding angles है. ये था 58 degrees. अब क्वेश्चन में आपको बोला है that AB equals AC. क्वेश्चन देखो, उसमें दिया हुआ है AB equals AC. AB equals AC मतलब ये और ये साइड सेम है. अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. तो एंगल B 58 मिल जाएगा. एंगल B 58. I will write like this. Therefore, angle B equals angle ACB. Angles opposite to equal side. So therefore, angle B is also 58 degrees. अब A मिल जाएगा इजीली. ढूंढ लो A. In triangle ABC, 58 plus 58 plus 8 equals 180. ठीक है, तो एंगल ए मिल गया 64. अब मुझे क्या ढूंढना है? बी कैसे मिल सकता है? एनी आइडिया? बहुत ही सिंपल है. सर सी और या पे ऐसे ढूंढ के उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं. ये है ना आगे भी corresponding angles. मान्य which corresponding angles? कौन सा angles corresponding है?
वेरी गुड. A and B. एंगल बी, ये वाला एंगल बी और ये एंगल बी डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग है. जेड भी नहीं, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग है. ये एंगल ये सीधा है, स्ट्रेट. तो दीस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये. ठीक है, देखो ऊपर नीचे ये एंगल्स, ये लाइन है, ऐसे है ना ये एंगल्स, ये दो लाइंस है और ऐसे दोनों एंगल, तो सीधा करस्पॉन्डिंग है. तो सीधा लिखो एंगल बी is equal to angle small b, capital B equals small b, corresponding angles. तो वो भी मिल गया 58. Angle small b equals 58. आपको मिल गया A B C D की वैल्यू. हो गया? Any doubts here? Question number 11. ये बहुत ही सिंपल सा है. जैसे हमने पहले किया है वैसे ही समझे, तो ये आप खुद सॉल्व करो. चलो सॉल्व करो. आई विल चेक इट. सॉल्व. हमें CAB फाइंड करना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एंगल CAB, मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड करना है. तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए. Solve this. I'm giving you 2 minutes. क्या करेंगे यहाँ पे? सी AC एंड CD आर इक्वल, ये दोनों साइड्स, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. ठीक है, इन दोनों को आप x ले लो. एंगल CAD इक्वल्स एंगल CDA इक्वल्स x.
reason angles opposite to equal sides. ठीक है, तो ये दोनों अगर x हो गए, if these two are x, ये x, ये भी x plus x plus 58 equals 180, 122. So x equals 61 degrees. अगर x 61 मिला मतलब ये दोनों एंगल 61 हुए. अब अगर ये 61 है तो ये एंगल मिल सकता है मुझे लीनियर पेयर से. ठीक है, if this is 61, ये वाला एंगल ये मुझे मिल जाएगा लीनियर पेयर से. करेक्ट. So angle ADC plus angle ADB equals 180. Reason linear pair. Angle ADC is 61. ADB I told you. One 9 degrees ADB. फिर अब वापस ये साइड AB और DB सेम है. हाँ, AD and DB is same. अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे जो मैंने क्रॉस किया है. These two angles will be same. इनको मैं y ले लेता हूँ. समझो ये y है और ये भी y है. ओके, so y plus 119 equals 180. 2y equals 180 minus 119. 2y equals 61. Y equals 30.5. Correct? So means this angle here is 30.5. अब अगर ये 61 है और ये 30.5 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 91.5. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल CAB. Therefore angle CAB equals 61 plus 30.5. That is 91.5 degrees. Final answer. Next, अब क्वेश्चन 12 में उन्होंने कहा है इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर है उसी को क्वेश्चन नंबर 12 में यूज करना है. ओके, यही फिगर है. ऐसा थोड़ा हल चेंजेस किया. आप सेम नाम दो ABCD. ठीक है, नाम चेंज रखो बस इतना फिगर कॉपी करो. The same figure is used in question number 12. They have said
AC equals AD equals CD equals BD. चार साइड्स इक्वल है, AC, AD, CD एंड BD. एंगल के एक भी वैल्यू नहीं दी, एक भी वैल्यू नहीं दी एंगल. यस, अब यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है. अगर तीनों साइड्स इक्वल है मींस ट्रायंगल ACD इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. करेक्ट. ट्रायंगल ACD इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये इक्विलैटरल हो गया. I will write here AC equals AD equals CD. Therefore, triangle ACD is a equilateral triangle. Okay. Therefore, all angles are 60 degrees. ठीक है. इसका मतलब दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. एंगल ADC लिखो पहले, इज 60 डिग्री. अगर ADC 60 है तो ADB मिलेगा. ADC प्लस ADB इक्वल्स 180. ऐसे लिखना पड़ता है आपको. दिस एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम है 180. So ADC दिया है 60 degrees plus angle ADB equals 180. 180 minus 60 degrees equals 120 degrees. Now this is 120. If this is 120, this angle is 120. और ये दो साइड सेम है. This AD and BD same means this angle and this angle is equal. Okay, so let's take these angles as x. तो उसको लिखना कैसे, पहले मैं लिखूंगा AD equals DB. In triangle ADB, x plus 120 equals 180. So 3x equals 120. Subtract होगा. Sorry, 2x. So 60 upon 2, that is 30 degrees. Okay, so ये x मिल गया 30 और ABC मतलब ये x है. यही एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है. So therefore angle ABC equals 30 degrees. Question number 30. In triangle ABC, AB equals AC.
and angle A ratio angle B is 8:5. This is given in the question. So A और B का रेशियो दिया है, तो let the angles B 8x and 5x. कौन सा एंगल 8x है? एंगल A, तो A की जगह पे मैं लिखता हूँ 8x. और कौन सा एंगल 5x है? तो B is 5x. ओके. अब अगर आप ट्रायंगल में देखो ध्यान से, तो ये दोनों साइड सेम है, तो मींस ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. I will write here that AB equals AC. Therefore, angle B equals angle C. Reason by angle opposite to equal sides. Okay, so means ये angle भी 5x हुआ, same हो गया ना ये angle भी. Therefore, angle C is also 5x. अब आप x ढूंढ सकते हो कैसे? Yes, सारे एंगल्स को मिला के टोटल इज 180. In triangle ABC, 8x plus 5x plus 5x equals 180. Find this. Find the value of x. So x क्या मिल रहा है? 18x equals 180. So x equals 10d. और ढूंढना है हमें एंगल A. एंगल A is 8x, मतलब 8 into 10. 80 degrees. We have done till question number 13. Na? Fourteenth is show that first there is a triangle ABC. और भी छोटा सा समय, सिंपल समय. एंगल A is 60 degrees. एंगल B नहीं, एंगल C is 40 degrees. And bisector of angle ABC. Bisector of angle ABC, मतलब ABC का bisector है. Meets AC at point P. Meets AC at point P. ये bisector है. जो BP बन रहा है वो bisector. This is the bisector. ठीक है, bisector मतलब वो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. PP is the bisector of angle ABC. ये क्वेश्चन में बोला है. So these two angles are same. Okay, same है मतलब इनको x x ले लेते. So let angle ABP equals angle CBP equals x. इन दोनों को दोनों इक्वल है ना, दोनों को x ले लिया.
ठीक है, अब टोटल क्या होगा फुल ट्राइंगल का टोटल 180. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180. सो 60 प्लस x और x, ये 2x है. ये जो एंगल बी है ये 2x है, 2x है ना यहाँ पे. तो एंगल बी की जगह पे 2x और सी की जगह पे 40. तो 2x equals 180 minus 100. So x equals क्या मिल रहा है 40 मिल रहा है. तो x 40 मिला. देखो एक बार वापस सुनो. This was the bisector BP. Correct. BP was the bisector. These two are equal parts. तो इसको मैंने x x नाम दिया. Okay. Now इस full triangle में 60 plus this x and x and 40. So 60 plus 2x plus 40. 60 plus 2x plus 40 equals 180. So 2x equals 100. 180 minus 100. X मिला 40. X मिल गया 40 मतलब this angle is 40 degrees. Okay. अब अगर ये एंगल 40 है और ये एंगल भी 40 है तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होगी. जो थ्योरम का कोरोलरी होता है, मतलब थ्योरम का ऑपोजिट. अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है, लेकिन अगर एंगल्स इक्वल होती है तो साइड्स भी इक्वल होता है. तो